Hello, everyone. Happy morning, happy afternoon, happy evening. I wish you all of that because you watched this episode of The Revolving Perspectives from various corners of the world. Welcome you all to the next episode of The Revolving Perspectives. We have been running this series on uh, sustainable lifestyle to sustainable livelihoods for last 3 months, and we have been interviewing people who have been working in this field, who are doing something for our own environment. So by this we are trying to spread awareness. So welcome you all to The Revolving Perspectives, powered by positivity and sponsored by continued efforts to bring in enlightenment. So now a little bit about our today's guest. Engineer by qualification, but decided to get into something where he felt that it is the need of the hour and very important social cause where we all must look at. 1.8 billion people on this planet are still without access to clean drinking water. And why it is so? Because most of the water resources are contaminated, and chemical contamination or chemical pollution is one thing, but the garbage going into those water resources, ponds, is also a big issue. So apart from spreading awareness, there are a lot of other things, and it is a humongous task, of course. When we stand at the bank looking at this task and thinking what all that we can do, this man actually decided to put his hands to it and actually get things rolling. Now, I would like to welcome this person who is a motivator and who is setting an example by his own actions. Mr. Ramveer Tanwar, the world knows him by the word the Pond Man. Let's welcome him. Welcome, Mr. Thank you. Thank Ramveer. you so much, Vinda. Thank you so much. Yes, so as we can nicely see a beautiful water reservoir behind you, I am absolutely keen to understand what all made you do this. What was the trigger behind this effort? First of all, thank you, Vinda, for inviting me in your this wonderful series. And the water body you are seeing behind me is also revived by us only. So that's why we put it with us always. The question is what the main point because of which we came in this field. So that was, I think, there was so much regions, and the main region was my childhood memories and the work I did in my childhood. So in my childhood, I used to do some type of activities which was nearby the water bodies. और इधर तो उनको तालाब कहते हैं, पोखर गांव में जोहड़। तो मेरा जो गांव घर की जिम्मेदारी थी वो थी कि बहुत सारी भैंसों को जंगल में लेके जाना, उनको घास चरा के लाना, घास खिला के लाना, वहीं उनको तालाब में नहला के लाना, नहर में नहला के लाना। Hmm. तो वो मेरी जिम्मेदारी थी। और मैं स्कूल की छुट्टी होने के बाद उसको बखूबी करता था। और वहीं मैंने तालाबों में ही, उन्हीं तालाबों में मैंने तैरना सीखा है। बिकॉज आज आपको स्विमिंग पूल की जरूरत पड़ती है, इवन मेरे बच्चों को भी स्विमिंग पूल की जरूरत पड़ेगी। बट उस टाइम पे हमने, जब हमारी भैंस तालाब में जाती थी या नहर क्रॉस करती थी कभी भी, तो उसी की पूंछ पकड़ के हम भी कूद जाते थे, क्योंकि बहुत छोटे थे तो डर लगता था। लेकिन वो क्रॉस करते करते भैंस की पूंछ पकड़ के वो हमें भी तैरना आ गया। जिन तालाबों में हमने तैरना सीखा है खुद ने, तो जब पढ़ाई करने के लिए थोड़ा गांव से निकल के शहर की तरफ आना जाना शुरू हुआ, देन आई रियलाइज कि वो पॉन्ड्स तो अब लैंडफिल साइट बनते जा रहे हैं। आप जितना अर्बन एरिया की तरफ मूव करेंगे उतना उनकी स्थिति, कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। तो उसी को देखते हुए मैंने पूरा ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट किया। But when I was doing my graduation, so I used to give tuition to some my students, 9th to 11th standard.
So then I used to discuss with them कि मैंने जिस तालाब में तैरना सीखा है, now that is being converted into the landfill site. So हमने सोचा कि हम चलो कुछ करते हैं उसके लिए, हम उस पे, लेकिन हमारे पास फंड नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था। तो व्हाट वी कुड डू कि हमने सिर्फ उस पे पोस्टर बनाते थे, डिजाइन करते थे हाथ से, एंड हम उसके दीवारों पे चिपका के आते थे कि हम तालाब से कैसे हमारा लाइफ कनेक्टेड है। तो दैट वाज द, जी। वो जस्ट एक हमारे लिए खेल था, हमारे लिए जस्ट वो एक गेम था कि हम सैटरडे संडे उसको करते थे। बट वो धीरे धीरे मीटिंग्स में कन्वर्ट हुआ, विलेजर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। फिर वो धीरे धीरे इस तरह का, तो उसका एक प्रॉपर नाम रखा हमने, जल चौपा। तो दैट वाज द इनिशिएटिव, हाउ इट वाज स्टार्टेड। Okay. How did it take the shape? मतलब ये तो आपके गांव से शुरू हुआ, पर आज मैं आपके पोस्ट देख रही हूँ लिंक्डइन पे, जहां पे आप पूरी पूरी बैरन लैंड को एक पॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये आपके गांव से निकलकर इट हैज रीच्ड टू द विलेज, टू द अर्बन एरियाज, एंड अक्रॉस नेशन नाउ पीपल नो यू एज पॉन्ड मैन। सो ये पड़ाव कैसे आया? Yeah, actually, when we started the Jal Chopal, I mean water meeting with our villagers, so it took a shape in next 3 to 4 years. Like when our district magistrate came to know about our initiative that some students are doing such type of activities in his village, so they called us, they invited us, and asked about the same initiative, and we explained. So he gave order to the government officers that you should make a documentary of 2 minutes, and allow all the cinema halls in this district that this must play this documentary before movie get starts in cinema halls. Wonderful. So that was the, like, when we explained our initiative, so he got emotional and he said that ki everyone should know about this initiative, Yes. everyone should be participate in your initiative. So when the our documentary played in cinema halls, so some people got connected with us, and some messaged us, some called us that Hmm. this is like a unique initiative and we would like to support you in this initiative, like some financially, some as a volunteer, some as an expert. So that was the initiative, and that was the point when it started to take the shape. So Okay. after my graduation, I started to do job in a multinational company. So in, and the timing of that my job was from 5 a.m. to 2 p.m. So Okay. I was having around half of the day, second half free for me. So I used to visit the village ponds. I used to visit some offices of environmentalists, visit offices of ministries, some government offices, from where I can get knowledge about this. Okay. So this was the like process for next 2 years. But in 2 years, I got lots of knowledge Hmm. that how government taking initiatives about our ponds, how environmentalists are doing I their okay. efforts, Hmm. and what are the government schemes from where we can get financial support for this initiative. After 2 years of my multinational company job, I left my job and I came full time into this. I joined a small, like a short course that is called GSDP, Green Skill Development Program, that is being run by the Ministry of Environment, Government of India. Okay. So I got some certificates and lots of knowledge from the ministry, how we can measure the pollution in pond, what are the types of pollution, how we can reduce that. So after that certificate, I got some knowledge and I started to share that knowledge in schools and colleges. And because uh, before either the my sustainability was from my job, and I was not having any job that time. So I started to do this in school and college, and I started to take some charges like 500, 600 per Hmm. visit. Hmm. So and I started to give again tuition to the student. So that was my sustainability those days. But Okay. धीरे धीरे वो मैं थोड़ा एक्सपर्ट उसमें बनता चला गया, एंड आई गॉट टू नो अबाउट द CSR दैट corporates also can support us financially in this initiative. So then I
like registered an NGO Mm-hmm. called Say Earth, and Yes. a consultancy called Pondman. So Okay. that was the Pondman Enterprises. So that was the time when it took like a it was initiative was taken. Hmm. All right. Okay. When I'm listening to these milestones of yours, two, three things are striking. One, when you started at a village level government body took cognizance of it, and then they said that this awareness should be spread across. Yeah. Uh, so that was an initiative from government, but as you progress, you must have realized that while talking to people at ministry level, how was your experience? Was that acceptance from people, was it easy? Were they ready to look at this as a need of the hour, or you had to take some rigorous efforts for it? How did you manage that? हाँ, देखिए वो बिल्कुल सच है कि मिनिस्ट्री है या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, दे they don't look like a it's challenge or it should be a good thing, we should support this initiative, because उनके पास अपना काम उतना सारा होता है और वो उनके लिए एक यूज टू होती हैं ये सारी चीजें, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं अपना प्रपोजल लेके। बट फिर मैंने सोचा कि और स्टिल मैं अभी भी द वन थिंग आई फॉलो, आई डोंट एक्सेप्ट द गवर्नमेंट फंड्स, आई डोंट यूज द गवर्नमेंट फंड इन माय प्रोजेक्ट्स May I आइदर। ask why so? देयर आर सम रीजंस लाइक वो एक तो टेंडर निकलेगा गवर्नमेंट का, हाँ. you have to participate in that tender, you have to do some type of activities, you have to make them happy, है ना? So there are some activities I don't like to do, है ना? जो और गवर्नमेंट के लिए वो ऑफिसर्स के लिए वो बहुत कॉमन बन चुकी हैं आज की चीजें, है ना? लाइक कुछ कैशबैक का भी सिस्टम होता है बहुत सारी जगह पर, वो आज दिन हम न्यूज सुनते रहते हैं। तो वो एक सारी चीजें थी, तो आई डिसाइडेड टू नॉट टेक एनी गवर्नमेंट फंड फॉर माय प्रोजेक्ट्स। सो माय प्रोजेक्ट्स आर बीइंग डन बिकॉज ऑफ आइदर ऑफ इंडिविजुअल डोनेशन और द कॉर्पोरेट डोनेशन, दो ही हमारा सोर्स है। तो ये था, बट अभी के टाइम पे आई दे इनवाइट मी, द मिनिस्ट्री पीपल्स इनवाइट मी एज ए गेस्ट स्पीकर इन दिस मिनिस्ट्रीज। Okay, all right. So now going forward, you have spread it across nation, and I have also seen a documentary where I'm seeing people at an international level getting motivated by your actions, your work. How do you look at your goals? Say, where do you want to reach, or how do you want to take it forward? देखिए, नाउ आई एम द पॉन्ड मैन, and one pond man is not sufficient to make a big change in this world or in our country. So my next goal is to make more and more pond men, so they can make the changes in their districts, in their talukas, in their villages, in their cities. So that is my only initiative nowadays. In parallel of restoring the ponds, I am trying to create more pond mans. So after me, they can replicate the Wonderful. initiative in their districts or areas. Hmm. And second things, to make this process more sustainable and more effective, because हम वाटर बॉडीज को रिस्टोर तो कर देते हैं, बट वो 2-3 साल में फिर से उसी शेप में आने लगती है ना? Hmm. बिकॉज हम वो किसी एलियन ने उनको गंदा नहीं किया है, वो जो आसपास लोग रहते हैं हम लोग हैं वही उसमें कचरा डालते हैं पूरा। बट आप रिस्टोर कर देंगे, लेकिन आप उनको एक साथ बताएंगे और एक साथ सब सुधर जाएंगे, दैट इज Correct. इम्पॉसिबल। उनको 50-100 साल से वो आदत पड़ी हुई है किसी भी वाटर बॉडी में कचरा फेंकने की, तो वो 5-6 दिन में नहीं जाने वाली है, उसके लिए अगला नेक्स्ट 2, 2, 3, 4, 5 ईयर्स आपको देना पड़ेगा। तो मैं अब वही कोशिश में लगा हूं कि कैसे इसको मोर ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल बना सकें और ज्यादा से ज्यादा इसको अच्छा इफेक्टिव बना सकें, लॉन्ग टाइम के लिए इसको जो बचाया जा सके। तीसरा मेरा अभी का जो मेरा पर्पज है कि हम एनवायरनमेंट को बहुत सोशल वर्क की तरह कंसीडर करते हैं,
नॉट ओनली अस, कि हमारी मिनिस्ट्री भी, हमारे लोग भी उसको सोशल वर्क की तरह इनिशिएटिव करते हैं कि ये तो लोग खुद ही कर लेंगे, बट दैट्स नॉट ट्रू। जब तक इसको एक प्रोफेशनल वर्क नहीं बनाया जाएगा, तो लोग, आज हमारे यंगस्टर्स या खुद हम अपने बच्चों को जैसे इंजीनियर डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो वैसे उनको एनवायरमेंटलिस्ट नहीं बनाना चाहते आज हम उनको, क्योंकि उसमें क्योंकि सस्टेनेबिलिटी नहीं है। हाँ, हमें लगता है कि उसमें पैसे नहीं मिलेंगे, हाउ ऐसा नहीं विल है। इट अभी मेक। चिंतित रहते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कि उसका फ्यूचर कितना सिक्योर है, उसको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस उसमें। तो अगर एनवायरनमेंट को, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे हम खुद लोग हैं, उसको अगर उतना सस्टेनेबल बना देंगे, उसका फ्यूचर सिक्योर अगर लोगों को दिखना लगेगा, तो इंजीनियर की तरह लोग एनवायरमेंटलिस्ट भी बनना चाहेंगे। और लोग फिर जो है इस तरफ उतना ही डेवलप होगा। अब देखिए, अभी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, उतने सारे हाईवे बन रहे हैं, उतने सारे मेट्रो बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि पिछले 10 साल में उतने इंजीनियर्स निकले हैं, है ना, सिविल इंजीनियर्स निकले हैं, आर्किटेक्ट निकले हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और दो अपना स्किल यूज कर रहे हैं। अगर हम उसी तरह के एनवायरनमेंट फील्ड के लोग निकालेंगे, तो वो भी देश में चेंज लाएंगे, और गवर्नमेंट की मजबूरी हो जाएगी उनको कहीं ना कहीं जॉब देने के लिए, या उनको कहीं ना कहीं चेंज का पार्ट बनाने के लिए। करेक्ट। सो जैसे हमारी रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वैसे भी इट इज हाई टाइम दैट वी शुड सेंस दैट वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ environment related areas. It could be pond, it could be forest, it could be simple parks. So ऐसे requirements इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ के आएंगी, तो probably उनको बनाने के लिए वैसे ही इंजीनियर्स की या एनवायरमेंटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। आई कंप्लीटली टेक योर पॉइंट। शुरू में आपने जब इसको इनिशिएट किया, तो यू सेड दैट वी, मतलब आई एम श्योर दैट अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स probably must have initiated this, but eventually as you are growing this across cities, you must be needing a team. आप लोगों को जोड़ते कैसे हैं आपके साथ? हाँ, उसके लिए हमारा देखिए दो चीजें हैं। सोशल मीडिया तो आज बेस्ट है लोगों को जोड़ने के लिए, क्योंकि आप लोगों, किसी के पास उतना टाइम नहीं है कि आपके पास पहले आके ऑफिस में मीटिंग करें एंड वो आपको बोलें कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आप जितना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहेंगे, लोग उतना आपसे जल्दी कनेक्ट होंगे, और उतना ही उनको, जितना उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उनके आसपास क्या चल रहा है। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया कि इसको सोशल वर्क कंसिडर किया जाता है, तो कोई भी फुल टाइम नहीं करेगा, क्योंकि सबको अपना फैमिली भी रन करना है। तो अब हमारी जरूरत है कि लोग, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, पुलिस है, वो अपना काम करते करते कैसे अपना थोड़ा सा टाइम, उनका थोड़ा सा टाइम हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज द ओनली चैलेंज विद अस। तो उसके लिए वही पॉसिबल है कि कैसे उनको ऑन टाइम इंफॉर्मेशन मिले और क्विक इंफॉर्मेशन मिले, और उनके आसपास जो भी है उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए अपनी तरफ। तो उसके लिए हम पूरा सोशल मीडिया का हेल्प लेते हैं, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वो सारी चीजें हैं। फिर बचता है ये अपना जल चौपाल। तो हम गांव में तो जल चौपाल लगाते हैं, और गांव गांव में जाके मीटिंग करते हैं। वहां पे अगर 100 लोग आते हैं, तो 5 से 10 लोग निकलते हैं जो थोड़ा सेंसिटिव होते हैं इस मुद्दे के लिए, इस टॉपिक के लिए, एंड दे कम विद अस। जो दो दैट आगे इज बढ़ द। के कुछ करना चाहते हैं आपके साथ जुड़ के। राइट, ओके। आपने सीएसआर फंड्स की बात करी। सो हाउ आर यू कनेक्टिंग विद सीएसआर? Is CSR also finding it difficult to understand or look at it as the need of the hour, or they are aware and it is simply a matter of explaining them how it will work, or how can we make it financially feasible? How does it Yeah, work? in starting days, in initial days, we were behind the CSR corporates. We were approaching them, but touch wood, now it is like a reverse. Now corporate approach us that we have this amount of CSR, please accept this. और उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि इस साल हम नहीं कर पाते, क्योंकि अब हमारे पास एक लिमिटेड टीम है, लिमिटेड है। और ये काम ऐसा नहीं है कि आप कहीं से टीम हायर करें और वो कर सके उस काम को। Correct. में आपको पहले उनको सिखाना पड़ेगा, फिर वो करेंगे। तो वही एक है। तो सीएसआर अभी एक तो माउथ पब्लिसिटी है ही, कुछ जो कॉरपोरेट्स हमारे साथ जुड़े हैं, तो जब वो जाके कहीं पे अपना प्रोजेक्ट शो करते हैं, कहीं पे किसी भी
जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेट्स की भी मीटिंग होती रहती है। Correct. व्हेन दे शो और दे प्रेजेंट की हमने इनसे कराया है और दिस इज द रिजल्ट ऑफ द आवर CSR फंड्स, तो फिर दूसरे कॉरपोरेट्स अप्रोच करते हैं। दूसरा है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन पे हम पोस्ट करते हैं, वहां पे ऑलमोस्ट मोर देन 500 कॉरपोरेट्स कंपनीज के CEO डायरेक्टर आर कनेक्टेड विद अस। तो Wonderful. पे फिर जिनको अच्छा लगता है, मान लो हमारे पास ये पॉन्ड है, ये लैंडफिल साइट है, तो वी पुट इंफॉर्मेशन ऑन दैट लिंक्डइन पेज Hmm. अवर। और हम बोलते हैं कि ये हमारे पास अभी लैंड है जिसको हम इस बार रिवाइव करने जा रहे हैं। अगर कोई भी कॉर्पोरेट विश टू सपोर्ट अस, प्लीज इनबॉक्स अस। तो Okay. विद इन डे हमारे पास तो आ जाते हैं कि दिस टाइम प्लीज वी लाइक टू पार्टनर यू। So that is the way we found our corporate partners for CSR fundings. ओके। एक थोड़ा अलग सा सवाल है मेरे पास। आई एम श्योर इन दिस जर्नी में, ये जर्नी आसान तो नहीं रहा होगा, इन ऑल दीज टफ एरियाज व्हेन यू वर अचीविंग वन और द अदर माइलस्टोन वन आफ्टर द अदर, ऐसा क्या लगता है आपको कि जो छूट गया, जो करना चाहिए था या जो आपको चाहिए था पर नहीं मिला, यू हैड टू सैक्रिफाइस इट, व्हाट वाज दैट? हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, एक एज होती है जब मैं चाइल्ड मैरिड हूँ, और एक एज होती है यंगस्टर्स की जब वो मॉल्स में घूमते हैं, वो एंजॉय करते हैं, वो फॉरेन जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। मैं देखता था अपने बहुत सारे साथ के बच्चों को, बट उस टाइम पे आई वाज टेकिंग दिस इनिशिएटिव्स, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं पीछे रह गई। बट nowadays I'm trying to fulfill those gaps. I try to do the foreign journeys, and I try to like, लेकिन अभी सिर्फ प्रोफेशनल फ्रेंड्स है। उसका मोटो बदल गया है, यू गो उस टू गो टू प्लेसेस आउटसाइड इंडिया बट द मोटो इज डिफरेंट मोटो, प्रोबेबली। या मोटो इज लाइक अगेन वो प्रोफेशनल जर्नीज होती हैं कंप्लीटली। तो वो बहुत सारी चीजें थी जो पीछे रह गई इन माय पर्सनल लाइफ। और दूसरा कि मैं अभी भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं हमेशा जो भी अगर डिस्टेंस कोर्सेज होते रहते हैं, मैं उनको पढ़ता रहता हूँ हमेशा। बट मैं आई विश टू कंप्लीट द PhD एंड अदर कोर्सेज। बट जैसे मैंने बीटेक किया, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। बट एमटेक वो लास्ट ईयर में मेरे सारे एग्जाम छूट गए। फिर मैंने LLB में एडमिशन लिया जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज। वो मैं फिर से उसके एग्जाम नहीं दे पाया। अभी फिर मैं MSc एनवायरमेंट कर रहा हूँ, अभी पता नहीं उसका एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं। वो बिजीनेस की वजह से वो पूरा हम्म। पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार। तो वो बहुत सारी चीजें छूट जाती है। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल दैट यू आर सेइंग इज, सीखने की चाह जो होती है, urge to learn something is alive and which will always remain live with you because of the kind of person you are, so that you will always want to learn something new and work on yourself. I think that's a message for our audience also, that whatever that you choose to do for your life, as your career, as your profession, you can keep learning, and no age is a barrier for that. एक आखिरी सवाल की तरफ मैं आ रही हूँ। अभी आपको करंट सिनेरियो में क्या चैलेंजेस लग रहे हैं इसको आगे लेके जाने के लिए? हाँ, देखिए, अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि इसको कैसे गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव से कैसे इसको एक लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल बनाया जाए। हम्म। क्योंकि मैं या मेरी कोई भी टीम है, वो लाइफ टाइम के लिए वहीं पे स्टक होकर नहीं रह सकते। ये बिल्कुल। पॉइंट को रिस्टोर किया और उसको लाइफ टाइम के लिए मेंटेन करते रहे। तो और दूसरी चीज, वो एक इनके लिए एक सिंगल विंडो होनी चाहिए इस तरह की वाटर बॉडीज के लिए। आप हम्म। वो डिपार्टमेंट्स में बटे हुए हैं, कुछ पॉन्ड्स है ना, वो कुछ फिशरीज डिपार्टमेंट के पास है, कुछ रिवेन्यू के पास है, कुछ फॉरेस्ट के पास है, कुछ इरिगेशन के पास है ना। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो पॉन्ड बटे हुए हैं, मैं अलग अलग स्टेट्स में देखता हूँ। तो कम से कम, मान लो मैं तो अभी 6 स्टेट्स में काम कर रहा हूँ। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एटलीस्ट वो सिंगल विंडो होनी चाहिए कि आप यहाँ पे अप्लाई करिए, आपको NOC मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन मिल जाएगी।
क्योंकि बहुत सारा टाइम तो उसी चीज में खराब होता है कि पहले आप पता करिए कि किस डिपार्टमेंट के पास है, फिर उनको अप्रोच करिए, है ना, फिर उनको आप समझाइए कि क्यों रिस्टोर करना जरूरी है ना। तो वो एक चैलेंज है। और दूसरा, गवर्नमेंट कैसे अपने इनिशिएटिव, जो खुद भी गवर्नमेंट रिस्टोर कर रही है पॉन्ड्स को, तो उसमें वो कैसे एक मेंटेनेंस पार्ट उसमें इंक्लूड कर सकती है ना। हम्म। जैसे हम अभी रिस्टोर करते हैं तो अगले 1-2 साल के लिए उसको मेंटेन भी करते हैं, करने का ट्राई करते हैं। बट क्या देखते हैं कि कई बार जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इस साल रिस्टोर किया, अगले साल फिर से उसी को रिस्टोर कर रहे हैं, क्योंकि वो हम्म। एक साल में वो हमारी हैबिट्स नहीं बदलती है लोगों की। राइट। तो उसके लिए आपके पास कोई और भी तरीका है? वन थिंग दैट आई हैव रेड अबाउट यू, आई रियलाइज दैट आप वो वाटर बॉडी के बैंक्स पे ऐसे ग्रास को या ऐसे ट्रीज को प्लांट कर देते हैं जिसकी वजह से गार्बेज आसानी से पानी में ना चला जाए. सो या दिस इज वन resolution probably that you have thought about. But is there anything else that you have thought and maybe you are working on it or you want to हाँ work बिल्कुल, on it? देखिए हम, जैसा मैंने कहा कि मैं ट्राई कर रहे हैं कि कैसे इसको ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल बनाया जाए। वो अभी भी हम लर्निंग फेज में है। और हम अभी तो, हमें जो सबसे अच्छा तरीका यही लगता है कि आप उसके चारों तरफ उतना डेंस प्लांटेशन कर दीजिए कि लोग फेंके तो उस तरफ जाए नहीं कचरा, या फिर लोगों को अंदर, बहुत अंदर जाना पड़े फेंकने के लिए। क्योंकि अब कोई भी एक छोटा सा फेंस करेंगे तो लोग उसके ऊपर से फेंक देंगे। हम्म. लेकिन एक टाइम के बाद जब पेड़ बड़े हो जाएंगे, सब बड़ा हो जाएगा, तो लोग उसकी तरफ जाने से थोड़ा डरे। तो वही एक तरीका है कि कैसे, लेकिन वो एक ऐसा प्रोसेस है कि आप उसमें जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। पेड़ को अगर 5 साल लगेगा तो 5 साल लगेगा बड़ा होने में, आप उसको, ऐसा नहीं है कि आप उसको 1 साल में बड़ा कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल. uh, okay, I also want have read about urban forestation in your posts and various things that I read about you. So what would you like to tell us about that? हाँ, अर्बन एफोरेस्टेशन देखिए, अभी हमारे जो शहर डेवलप है, चाहे वो बेंगलोर है, चाहे वो गुड़गांव है, चाहे वो दिल्ली है, नोएडा है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। और ये ज्यादातर अर्बन, ये फॉरेस्ट को वहां से हटा के शहर को डेवलप किया गया है। तो अभी वहां पे पेड़ तो हैं, लेकिन वो एक पार्क की शेप में है, जहाँ पे 90% में पार्क है, 10% में किसी दीवार के किनारे पे पेड़ है या रोड के किनारे पे पेड़ है। तो आप उस पेड़ को एज ए पेड़ तो कंसीडर कर सकते हैं, बट उस पेड़, आप लाइन में पेड़ को आप ये कोशिश करें कि वहां पे बायोडाइवर्सिटी मेंटेन हो, दैट वो नहीं हो सकता। हम्म. उसके लिए फिर प्रॉपर आपको जंगली बनाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तो हम वही, अगर शहर के आसपास कहीं पे भी ऐसी कोई बैनर लैंड या बच गई है कोई, तो उसको प्रॉपर पार्क ना बना के प्रॉपर फॉरेस्ट बना दिया जाए। और वो फॉरेस्ट उतना बड़ा तो नहीं होता, क्योंकि शहरों में उतनी जमीन नहीं बचती है। तो उसको क्या, मिनी डेंस फॉरेस्ट फिर हम बोलते हैं, अर्बन फॉरेस्ट बोलते हैं। ताकि वो, चाहे वो अगर वहां पे 5,000 भी पेड़ है, तो 5,000 के बीच में कुछ उसको आइसोलेट कर दिया जाए पूरा। उसमें सांप रहे, उसमें कछुआ रहे, उसमें खरगोश रहे, उसमें चिड़िया रहे। वो कम से कम इंटरफेयर नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि पार्क्स में कोई भी सांप नहीं रह सकते, देखते ही मार देंगे लोग, है ना। कोई खरगोश नहीं रह सकता वहां पे। करेक्ट. शहर के बीच में बटरफ्लाईज कहाँ रहेंगी फिर, मतलब बिल्कुल. ये हनी बीज कहाँ रहेंगी। तो उनके लिए एक आइसोलेटेड जगह चाहिए, है ना। तो हम्म. वो हमें उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उनकी जरूरत है। किसी भी शहर के आसपास जब तक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप नहीं होगा, तो वहां पे वो फीलिंग भी नहीं आएगी हमें। जी, बिल्कुल. The world is talking about global warming, climate change, and that we need to take a lot of efforts to stop this or maybe reduce the speed of the disaster. Ponds and forests are important links of our ecosystem. So या I am asking this question: that what role do these links play in our climate change thing or global warming thing? तो क्लाइमेट चेंज है या ग्लोबल वार्मिंग है, कोई वो किसी एक चीज से रिलेटेड नहीं है। उसमें बिल्कुल. हमारी डेली एक्टिविटीज है ना, चाहे वो हमारा खाने से लेके, सोने से लेके, चलने से लेके, वो एवरी थिंग, एवरी एक्टिविटी की फर्क से क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग फर्क पड़ता है। जी. लेकिन कुछ चीजें हैं वो बहुत क्लियर, उनसे फर्क पड़ता है और बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। वो है फॉरेस्ट और ये अपना पॉन्ड्स।
तो जब तक पॉन्ड है वहां पे, और पॉन्ड को भी अगर आप, मैं शहरों में देखता हूँ काफी जगह उसको 100% कॉन्क्रीटाइज कर देते हैं इंजीनियर लोग, है ना। उसको नीचे भी उसका बेस बिल्कुल पक्का है, चारों तरफ से भी पक्का है, तो उसका कुछ मतलब नहीं रह मतलब जाता, वो नहीं। सिर्फ एक सीवेज टैंक का काम करता है। वी कैन नॉट से दैट पॉन्ड। तो वो एक प्रॉब्लम है। तो जब तक नीचे से वो कच्चा नहीं होगा, वहां पे ग्रासेस नहीं होंगी, वहां पे एक्वेटिक बर्ड्स नहीं आएंगी, वहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स नहीं आएंगी, तब तक उसको पॉन्ड हम नहीं कह सकते। तो वो, अच्छा देखिए, जब उसमें बारिश का पानी आएगा वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, और हम्म। ग्राउंड वाटर रिचार्ज से एक्वीफर्स रिचार्ज होंगे। तो एक्वीफर रिचार्ज होंगे तो फिर से वो एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, जो कि क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो क्लाइमेट चेंज के लिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल अपने एक जनरेट करना शुरू होगा, है ना, कुछ इवोपरेशन होगा फिर उसी वाटर बॉडी से। Right. अगर वो पॉन्ड नहीं होगा तो वो रन ऑफ हो जाएगा, नाला, नाले से बड़ी नाला, नाले से वो सीधा जाएगा, तो वहां उस एरिया में तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा फिर, या उस एरिया में कोई रिचार्ज नहीं होगा। तो वो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है। चाहे अर्बन फॉरेस्ट है वो, है ना, आप देखेंगे, आप सड़क पे जाइए, अर्बन फॉरेस्ट से आप बाहर निकलेंगे, अर्बन फॉरेस्ट में घुसेंगे तो आपको 5 डिग्री का डिफरेंस दिखाई देगा टेम्परेचर में। तो दैट इज द लाइक इंडिकेटर कि अर्बन फॉरेस्ट से कितना फर्क पड़ सकता है हमें। और चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, उसमें पूरा 90% रोल टेम्परेचर का है ना। तो हम, क्योंकि किसी भी चीज से हम जब रिलेट करते हैं तो वो टेम्परेचर को बढ़ाती है, और उसी से फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो अर्बन फॉरेस्ट है जो शहर को ठंडा करने में, ठंडा रखने में हमारी मदद करते हैं। Right, right. Thank you so much. And this is bringing me to our last question to you. There are so many lay persons who are wanting to do something, but they think that मैं अकेले क्या कर लूंगा. तो what is your message to lay persons at their level? How can they contribute? What can they do so that they can do some meaningful action towards maintaining the balance of our ecosystem? बिल्कुल, देखिए, सब अपने 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 स्तर से बहुत लोग कर सकते हैं। एवरीवन नो नीड टू क्विट द जॉब एंड कम फुल टाइम इनटू दिस। सो आप जो भी कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में कर सकते हैं, आप कैसे फूड को बचा सकते हैं, आप फूड को वेस्ट होने से बचा सकते हैं अपने ऑफिस में, आप अपने ऑफिस में कैसे पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो आपका एवरी सिंगल स्टेप वो एक अच्छे कॉज में कंसीडर होता है। वो आपका एवरी सिंगल स्टेप क्लाइमेट चेंज को जाके फर्क डालता है, ग्लोबल वार्मिंग को फर्क डालता है। या आप अगर अपने गांव जाते हैं तो आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे एक इनिशिएटिव है, हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड। हम्म। आप गांव में जाएं, आपको लगता है कि ये तो बचपन में बहुत अच्छा था लेकिन अभी गंदा हो गया है वाटर बॉडी, सो यू नीड टू जस्ट टेक ए सेल्फी विद दैट वाटर बॉडी। यू नीड टू राइट ए पैराग्राफ About और it. सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट दैट एंड अपलोड इट विद हैशटैग सेल्फी विद पॉन्ड। तो एक, जब आप देखेंगे तो आप जैसे लोगों की एक कम्युनिटी डेवलप होगी, है ना, हम्म। तो जो इस टॉपिक के बारे में सोचते हैं, जो जिनको लगता है कि समथिंग इज नॉट गुड इन आवर सोसाइटी, तो वो होगा, हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी, और हम भी ट्राई करेंगे अपनी तरफ से कि कैसे उस वाटर बॉडी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं इस लाइफ में। जी। या फिर आप, अगर बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिनकी हेल्प से गांव वाले पौंड बना सकते हैं, है ना, तो आप उनको भी जाके अवेयर कर सकते हैं कि हम्म। बहुत सारा गवर्नमेंट फंड्स आता है बट गांव वालों को नहीं पता होता, वो वापस चला जाता है। वापस नहीं भी जाता तो कुछ लोग जो एलिजिबल नहीं है वो उसका फायदा उठा लेते हैं। तो जी। वो एक तरीका है कि कैसे हम अपना बेस्ट कर सकते हैं। हम्म। Thank you. Thank you so much for such a wonderful, insightful information. This interview, I just loved having this conversation with you, Ramvirji. And this channel of ours is watched by many people across countries. And I wish your team all the best and continuing with the initiative. I would also like to contribute in some or the other way. One, by working on my own habits and practices, which is absolutely doable at my level. But as far as a bigger thing is concerned, we have been running this campaign of sustainable lifestyle for last 3 months, and in our actions we will keep continuing it as a part of our life.
जहां पे भी मुझे लगता है कि I can contribute meaningfully to this initiative, I will definitely connect with you, and I appeal the same to our audience that wherever you feel that you can do even play even a small part, please do connect with us or with Ramvirji. He is available on LinkedIn and all other social media platforms. Please do connect with him. And at your local level, if you could take one small step, even that can play a big role in changing what we are seeing currently around us. All the best to your endeavor, and thank Thank you you. so much for your time. Thank you so much.